A very hearty good morning, dear children. We are doing the lesson Neighborhood Services. And in this lesson, we have discussed about various neighborhood services that help us to live in comfort, like hospital, market, school, post office. Okay. Apart from these, there are many more services which are very useful to us. I have completed the lesson and today I will be discussing the exercises of this lesson. But before starting the exercise, I will just revise the lesson in short and will discuss about few more neighborhood services which are not mentioned in the book, and then we will discuss the exercises. As I told you, neighborhood services are the places which provide services so that people can live in comfort. Neighborhood services जो होती है वो हमें कंफर्टेबल लाइफ लीड करने में, कंफर्टेबली रहने में हेल्प करती हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड different kinds of services. Suppose there is some problem with the electricity connection in your house. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है. You go to the market, you go to the electrician's shop, you bring one electrician, he checks it, देख करके फॉल्ट बता दिया कहाँ पे क्या है, and then he repairs it. Suppose if this service is not available, अगर ये सर्विस अवेलेबल नहीं है तो कितनी प्रॉब्लम होगी, किससे ठीक कराएं, कैसे ठीक कराएं. वी आर नॉट ट्रेन टू डू ऑल दीज थिंग्स. दीज आर एक्सट्रीमली टेक्निकल वर्क. ये सब जो काम होता है ये बहुत टेक्निकल होता है, और ऐसा नहीं है कि दिस इज़ वेरी इजी, अरे तो बस तार टूट गया मैं खुद भी कर सकता हूँ. ये इट इज़ नॉट दैट. दीज आर ऑल वेरी टेक्निकल वर्क एंड दिस इन्वॉल्व्स एक्सपर्टीज़. ऐसा नहीं है कि ये कोई भी कर ले. तो neighborhood services are the places which provide us different services so that we can live in comfort, and these are extremely useful. Like market, we require anything, we go to the market and buy it. किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत है हम मार्केट में जाते हैं, ख़रीद करके ले आते हैं. whether it is fruits, vegetable, clothes, any stationery item, any toy, कुछ भी खरीदना हो, एनीथिंग टू डेकोरेट, एनी डेकोरेटिव आइटम, कोई भी सामान हो, वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय इट. देन बस स्टैंड. बस स्टैंड इज़ अ प्लेस फ्रॉम एट वेयर यू वेट फॉर द बस. बस स्टैंड पे आप बस के आने का वेट करते हो. जैसे स्कूल बस भी है, आपको पता है कि बस स्टैंड पे आएगी, तो यू वेट एट द स्टॉप. कहीं पे भी ऐसे रैंडम प्लेस पे नहीं वेट कर सकते. सो बस स्टॉप इज़ द प्लेस from where we get bus to go to our destination. कहीं भी जाना है, कहीं गांव जाते हो, नानी के घर गए, दादी के घर गए, so if it is not very far you go by bus also. तो उसके लिए आप बस स्टैंड पे जाते हो, you know कितने बजे बस जाएगी वहाँ पता करते हैं, then we go by bus. So we know that from the bus stand we will get the bus. Then school. School is an extremely important place. It is an extremely important neighborhood service because you come to school every day. Without school, you will not be able to learn much, not in the sense कि आप घर में बैठ के नहीं सीख सकते हो, but school is the place where apart from learning, apart from reading, writing, speaking, you learn so many other things. You learn so many good values, you learn so many other skills. ठीक है. आप हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप लिखने और पढ़ने के अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो. आप फ्रेंड्स बनाते हो, यू मेक न्यू फ्रेंड्स. टीचिंग के अलावा आप डांस करना है, प्ले करना है, अलग अलग गेम्स सीखते हो. ठीक है. यू लर्न हाउ टू
सिट विथ अदर्स, बच्चों के दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, दीज आर ऑल सोशल स्किल्स। ठीक है ना, हम हर समय सबसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, हमको किसके साथ कैसा बिहेव करना है, वी हैव टू लर्न इन द स्कूल। अपार्ट फ्रॉम learning to read and write, you learn various other things also. ठीक है, then we go to, there are different places of worship, every religion has different place of worship. ठीक है, अलग अलग धर्म की अलग अलग अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप होती है। हिंदूज टेम्पल में जाते हैं, मुस्लिम्स मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियंस गो टू चर्च, सिख्स गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। जैसे भी उनकी अपनी प्रेयर होती है, जैसे भी उनकी पूजा होती है, वो अपने रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए दे गो टू देयर डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। देन वी हैव हॉस्पिटल्स। Hospital is also extremely important because in case of any illness, any injury, we go to hospital only. Doctors and nurses take care of us in the hospital. Then post office. And post office is the place where we can buy inland letter, envelope, stamps, postcard, etc. वहाँ पे हम अपने लेटर्स पोस्ट भी करते हैं। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी सेविंग स्कीम्स भी चलती हैं, पीपल डिपॉजिट देयर मनी, पीपल विड्रॉ देयर मनी। देन अपार्ट फ्रॉम दीज सर्विसेज, there are some other important services also which are not mentioned in your book, like bank. We keep our money and other valuables in the bank. बहुत सारे लोग अपने घर के इम्पोर्टेंट पेपर्स भी बैंक में डिपॉजिट रखते हैं बिकॉज दे नो कि बैंक इज़ द सेफेस्ट प्लेस। देन कभी हमको घर में तो हर कोई पैसे नहीं रखता है, तो लोग अपने पैसे बैंक में ही रखते हैं। व्हेन वी रिक्वायर मनी वी गो टू द बैंक, वी विड्रॉ इट। पीपल कीप देयर ज्वेलरी, दूसरे जो जैसे अपनी ज्वेलरी है और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्रेशियस चीज़ें हैं, बैंक पे रखते हैं बिकॉज इट इज़ सेफ देयर। नाउ अ डेज वी हैव ATMs ऑल्सो। ATMs आर ऑटोमेटेड टेलर मशीन एंड दीज वर्क 24/7, मतलब ये 24 आवर्स 7 days अ वीक हर समय काम करती हैं। ऑफकोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मशीन है कुछ ख़राब हो गई या कभी मशीन में पैसे ख़त्म हो गए, बट ATM से वी कैन विड्रॉ मनी इंस्टेंटली। हमें अभी पैसे चाहिए, हम जाते हैं ATM से तुरंत विड्रॉ कर लाते हैं। देन पुलिस स्टेशन इज़ देयर। Police station is also very very important. It is extremely important because policemen and police women, they keep us safe by maintaining law and order. They keep the society safe. They keep the society safe from unwanted people. ठीक है ना, कोई किसी तरह की कुछ इंसिडेंट ना हो, गलत तरीके के लोग ना आए, उन सब से हमको सेफ करके रखते हैं। They protect us from thieves and dacoits also. And nowadays you must be seeing that policemen and policewomen are doing such a great and wonderful job. अभी इस समय जब सब almost everything is closed, अब धीरे धीरे मार्केट ओपन हो रहा है, बट सिंस बिगिनिंग policemen, policewomen constantly रोड पे हैं, they are helping people, they are taking care of everything. ठीक है ना, they are risking their own lives and they are working for the society. So apart from keeping our neighborhood safe, they do some other job also. इस समय आप सब लोग पेपर में भी पढ़ते होगे, न्यूज़ में देखते होगे, अदरवाइज भी देखते होगे आप, इस समय सारे ऑलमोस्ट ऑल द पुलिसमैन दे आर ऑन द रोड टेकिंग केयर ऑफ पीपल, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, तो दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। ठीक है ना, दे आर लाइक, इस समय जैसे सबको बोल रहे हैं ना, जो भी इस कोरोना में काम कर रहे हैं सबको कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं। सो दे आर कोरोना वॉरियर्स एट द मोमेंट। अपना तो जो उनकी ड्यूटी होती है पुलिस वालों की, दे आर परफॉर्मिंग दैट ड्यूटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर कोरोना वॉरियर्स ऑल्सो, इजंट इट। इस समय वो सोसाइटी के लिए इतना सारा काम कर रहे हैं। देन फायर स्टेशन इज़ देयर। फायर स्टेशन इज़ द प्लेस where we call in case of any fire. If there's any fire anywhere, we call the fire station. They come with their vehicle and they have the expertise to extinguish the fire.
they know how to put it off, how to take out the people who are trapped inside, what precautions to be taken. उनको सारी चीज़ें पता होती है because they are trained. वो उस काम के लिए ट्रेंड होते हैं, तो उनको पता है कि अगर कहीं आग लगती है तो उसको कैसे बुझाना है. ऐसा नहीं होता है कि हर जगह कहीं भी आग लगे और हर जगह पानी स्प्रे कर देते हैं. इट डिपेंड. जैसे कई बार होता है शॉर्ट सर्किट वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी के वजह से आग लगती है, तो बहुत जगह पानी नहीं भी डालते हैं, उससे करंट आ जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर पानी आप डालोगे तो पानी में करंट आ जाता है. सो उनको पता होता है कैसे आग बुझानी है अगर अंदर जो लोग फंसे हैं, बिकॉज फायर इज़ देयर, स्मोक भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो बहुत लोग दम घुटने से भी पीपल डाई. तो उनको ठीक से पता होता है कि कैसे निकालना है, कैसे अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रखना है, and कैसे लोगों को निकालना है. सो फायर स्टेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमली important neighborhood service. Then parks are there, gardens are there. पार्क है, पीपल गो टू द पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, फॉर इवनिंग वॉक, फॉर एक्सरसाइजिंग. चिल्ड्रन गो देयर फॉर प्लेइंग. आप लोग पार्क में खेलने जाते हो, बड़े लोग जाते हैं वहाँ वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. सो पार्क इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस. कि ना, पार्क में हम वी गो, वी इनहेल फ्रेश एयर. सुबह सुबह लोग मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो दे कीप देयर बॉडी फिट, दे इनहेल फ्रेश एयर. सो पार्क इज़ ऑल्सो very important neighborhood service. Then apart from these services, अभी जैसे हमारे डेली लाइफ में हमें काम करने के साथ साथ वी नीड सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो. सारे दिन काम करके हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं. कई बार वी गेट सो टायर्ड, थोड़ा हमें रिफ़्रेश होने के लिए वी नीड सम एंटरटेनमेंट ऑल्सो. बोलते हैं ना कि आज तो मैं मम्मी पापा के साथ मॉल जाऊँगा, ठीक है, आज पिक्चर देखने जाएंगे. तो we need some entertainment also. For this, malls are there, restaurants are there. These all come under neighborhood services. Okay, जैसे entertainment के लिए picture halls हैं, malls हैं, restaurants हैं. These all come under neighborhood services. So apart from these, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, everything comes under neighborhood. These neighborhood services provide different services so that we can live in comfort. Now there are some keywords, that is, one is postman. Postman is the person who delivers letters to our doorstep. He is known as a postman, डाकिया जिसको हिंदी में कहते हैं. ठीक है. Then shopkeeper is the person who sells any article in a shop. अब बोलते ना दुकान वाले भैया, दुकान वाले अंकल, हमको एक पेंसिल दे दीजिए. ठीक है, तो शॉपकीपर इज़ द पर्सन हु सेल्स एनी आर्टिकल इन अ शॉप. किसी भी दुकान में जो भी सामान जो बेचता है, दैट पर्सन इज़ नोन एज द शॉपकीपर. एंड द पर्सन हु बाइज दीज थिंग्स आर कस्टमर. जो लोग सामान खरीदते हैं वो कस्टमर हैं, और जो सामान बेचते हैं वो लोग शॉपकीपर हैं. Now there are certain things to remember. These are neighborhood services make our life comfortable. मतलब जो neighborhood services होती हैं वो हमारी लाइफ को बहुत comfortable बनाती हैं. A market is a neighborhood service where we can buy our daily needs. Market is one of the very important neighborhood service. यहाँ पे हम अपने रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं. A school helps us to gain knowledge. स्कूल में हमें क्या होता है, स्कूल में हमें नॉलेज मिलती है. ठीक है ना, नॉलेज मतलब ज्ञान. अ डॉक्टर ट्रीट्स द सिक एंड इंजर्ड. जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिक और बीमार लोगों की और इंजर्ड लोगों की केयर करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं. वी सेंड मनी, लेटर्स एंड पार्सल्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस. हमारा जैसे अगर लेटर्स हैं, पार्सल्स हैं, मनी है, जैसे मनी ऑर्डर करते हैं. मनी ऑर्डर में जैसे हमने यहाँ से किया, फिर जो एड्रेस होता है वहाँ पे पोस्टमैन गोज़ टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस. एंड जितने का भी हमने मनी ऑर्डर किया, से 500 का मनी ऑर्डर किया है, तो पोस्टमैन उस एड्रेस पे जिसके भी नाम से मनी ऑर्डर है उसको 500 दे देगा. दैट इज़ मनी ऑर्डर. देन द पुलिस प्रोटेक्ट्स अस एंड कीप्स अस सेफ बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है और हमें सेफ रखती है
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. First is fill in the blanks using correct options. 4 options are given. You have to choose the correct option and fill in the blank. First is the dash maintains law and order in the neighborhood. Doctor, police, nurse and shopkeeper. Out of these 4, who maintains law and order in the neighborhood? And the correct answer is B, that is police. The police maintains law and order in the neighborhood. Second is we find shopkeepers in a. Shopkeepers हमें कहाँ मिलते हैं? Market, hospital, police station और bus stop. Of course, we find shopkeepers at shopkeepers in a market. We will not find shopkeepers in a hospital or at a police station or at a bus stand. Bus stand पे of course shops are there. कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचते रहते हैं. But we find shopkeepers in market only. That is also a market. Shopkeepers हमें market में मिलते हैं. We find police in police station and doctors, nurses, sisters, ward boys, other hospital staff, patients in a hospital. Third is we can keep our money safe in a. Where can we keep our money safe? Hospital, temple, bank, school, and the answer is bank. We can keep our money safe in a bank. Dash is not a place of worship. Temple, mosque, churches and hospital. Out of these, which is not a place of worship? Temple is a place of worship. Mosque is a place of worship. Churches, they are place of worship. Hospital is not a place of worship. Place of worship means जहाँ पे हम लोग पूजा करने जाते हैं, जहाँ पे हम जाके भगवान को वर्शिप करते हैं, that is place of worship. And fifth, dash is a crowded place. Which is a crowded place? Market, bus stand, hospital and temple. मार्केट इज़ अ क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ वाली जगह. बस स्टैंड में कभी भीड़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. हॉस्पिटल में भी ऐसे ही होगा, टेम्पल में ऐसा होगा. बट मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर नॉर्मली थ्रू आउट द डे आपको वहाँ पे भीड़ मिलेगी, जब तक कि मार्केट बंद नहीं हो जाता. ओके, नाउ बी इज़ मैच नेबरहुड प्लेसेस विथ एप्रोप्रिएट नेम. Match the neighborhood places with the appropriate name. Some pictures are there. You have to match them with the correct name. First picture, you can see many buses. In the first picture, you can see many buses. That means this is the picture of a bus stand. So match this bus stand with bus stand. You have to match the picture with the name. Then second is the picture of a, you can guess it, this is a picture of a market where you can see so many people. भीड़ पूरी दिख रही है. So this is the picture of a market. So match this with market. Third is the picture of a post office where people are standing at the counter. कोई मे बी कुछ परचेज कर रहा है, मे बी कोई पैसे डिपॉजिट कर रहा है, मे बी कोई पैसे विड्रॉ कर रहा है. So this is the picture of a post office. Then fourth is the picture of a police station. If you enlarge it, you can see it is written Thana Defense Colony, Nai Delhi. This is the, and you can see in a rectangle there are 2 triangles, red and blue. Red and blue, it is the sign of police. पुलिस का अपनी कलर देखोगे, this is the sign of police, color of police. So this is police station. First was bus stand, then next was market, then third was post office. Then you can make out that this is the picture of a school. Children are sitting in the class, they are wearing the same uniform, desk पे अपने काम कर रहे हैं. So this is the picture of a school. And last is the picture of a hospital.
You can see maybe a doctor or a ward boy in this uniform. Then you can see the patients also waiting in the corridor, sitting in the corridor. The next is, which shop sells these? Find out and write below. Bread. Bread is sold at, now in a market you don't get same all the things at one shop only. मार्केट में आपको सारी चीज़ें एक ही शॉप पे तो नहीं मिलती है ना. इफ़ यू विश टू बाई सम स्टेशनरी, यू गो टू अ स्टेशनरी शॉप. इफ़ यू विश टू बाई सम वेजिटेबल्स, यू गो टू अ ग्रीन ग्रोसर्स शॉप. इफ़ यू विश टू बाई फ्रूट्स, यू गो टू अ फ्रूट सेलर. स्वीट्स चाहिए तो आप स्वीट्स की दुकान पे जाते हो. इफ़ यू नीड समथिंग, सम बेकरी आइटम, यू गो टू अ बेकर्स शॉप. कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, देन यू गो टू एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप. So in a market there are different types of shops selling different items. तब हर एक शॉप पे सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं. You don't get everything in a single shop. Of course, if it is a departmental store, जो बड़े बड़े departmental stores होते हैं, where you get everything under one roof. So departmental stores, but then they are not shops. They are known as departmental stores. They are quite big. Some of them are so big that there are first, second, third, there are 2-3 floors, and there you get each and everything under one roof. मतलब any household item, खाने पीने की कोई चीज़ है, vegetables है, everything you get under one roof. But then they are not shops, they are departmental stores. So in a market also there are different shops selling different items. मार्केट में अलग अलग शॉप्स होती हैं जो कि अलग अलग तरह का सामान बेचती हैं. ओके, लाइक बेकरी का आइटम है, यू गो टू अ बेकर्स शॉप. कुछ स्वीट्स वगैरह चाहिए, यू गो टू अ कन्फेक्शनर्स शॉप. सो ओके, सो हियर यू हैव टू टेल विच शॉप सेल्स दीज. फाइंड आउट एंड राइट बिलो. ब्रेड यू विल गेट एट अ बेकर्स शॉप. ब्रेड बेकरी में बनती है. Vegetables you will find at greengrocer. Then sweets you will find at confectionery shop. Pencils you will find at stationery shop. So in a market, same shop does not sell everything. एक ही दुकान पे सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं. There are different shops for selling specialized items. ओके, स्टेशनरी की शॉप पे आप जाते हो, यू फाइंड ऑल काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम्स. कितने तरह की पेन्स चाहिए, पेंसिल्स चाहिए, इरेजर, शार्पनर, ड्राइंग कॉपीज, कलर्स, ड्राइंग बुक्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर स्टेशनरी आइटम यू विल फाइंड एट अ स्टेशनर्स शॉप. ओके, जैसे फ्लोरिस्ट, आपको अगर फ्लावर्स चाहिए तो वेयर डू वी गो. अभी वेजिटेबल की शॉप पे तो हमें फ्लावर नहीं मिलेगा, सो वी गो टू अ फ्लोरिस्ट शॉप. ठीक है, फ्लोरिस्ट अगर फ्लावर्स लेने हैं तो वी गो टू अ फ्लोरिस्ट शॉप. मेडिसिन लेनी है, यू नीड सम मेडिसिन, यू गो टू अ केमिस्ट शॉप. ऐसी किसी शॉप पे, वेजिटेबल शॉप पे तो दवाई नहीं मिलेगी, सो इफ़ यू विश टू बाई मेडिसिन यू गो टू अ केमिस्ट शॉप. फ्रूट्स चाहिए, यू गो टू अ फ्रूट सेलर शॉप. ठीक है ना, जो डेली का कुछ भी सामान चाहिए, कुछ चिप्स चाहिए, कोई कुरकुरे चाहिए, कोई राशन का बिस्किट का पैकेट चाहिए, एनीथिंग विच वी कंज्यूम इन डेली लाइफ, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो वी गो टू अ ग्रोसर्स शॉप. जैसे जहाँ पे अब ब्रेड अगर हमें लेना होता है तो वी डायरेक्टली वी डू नॉट गो टू द बेकरी, वी गो टू द ग्रोसर्स शॉप ओनली. ब्रेड अगर हमें लेना होगा तो वी गो टू अ ग्रोसर. ब्रेड जो बनती है दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन बेकरी, बट फिर वहाँ से फिर वो अलग अलग जो ग्रोसर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड वी बाई फ्रॉम ग्रोसर्स शॉप ओनली. मिल्क पैकेट चाहिए, एग्स चाहिए, ग्रोसरी आइटम चाहिए तो वी गो टू अ ग्रोसर्स शॉप. सो देयर आर डिफरेंट शॉप्स सेलिंग डिफरेंट आइटम्स इन अ मार्केट. ओके, सो बेकरी में यू गेट ब्रेड बनती है, देन यू गेट केक्स, पेस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एंड सो ऑन. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. Name some important neighborhood services. We have already discussed about some important neighborhood services. Some important neighborhood services are school, market, hospital, places of worship,
police station, fire station. Here you have to write some important neighborhood services. Not necessary to write all. You cannot write also. So you just have to, 6 lines are there, 6 spaces there. So you can write just any 6 neighborhood services. Then who looks after you in a hospital? Hospital जब आप जाते हो तो आपको कौन केयर करता है, आपकी कौन देखभाल करता है? डॉक्टर्स एंड नर्सेस लुक आफ्टर अस इन अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में हमारी कौन देखभाल करता है? डॉक्टर्स एंड नर्सेस. वेयर डू वी कीप आवर मनी सेफ? हम अपनी मनी को कहाँ सेफ रखते हैं? वी कीप आवर मनी सेफ इन अ बैंक. बैंक में हमें पता है बैंक इज़ द मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस. वहाँ पे अगर हम अपनी वैल्यूएबल सामान रखेंगे तो वहाँ से कभी चोरी नहीं होगी. देन हु इज़ अ पोस्टमैन? पोस्टमैन किसे कहते हैं? पोस्टमैन इज़ अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स टू आवर डोर स्टेप. पोस्टमैन जो होता है वो हमारे घर तक जो लेटर्स लेकर आता है उसको हम पोस्टमैन कहते हैं. वी डू नॉट गो टू द पोस्ट ऑफिस. हम पोस्ट ऑफिस तो नहीं जाते ना अपने लेटर्स देने के लिए. इफ देयर इज एनी लेटर द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर टू आवर डोर स्टेप. हमारे घर पे ला करके वो देता है. वेयर डू वी गो व्हेन वी नीड टू बाई वेजिटेबल्स? जब हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? वी गो टू द ग्रीन ग्रोसर व्हेन वी नीड टू बाई वेजिटेबल्स. जब हमें वेजिटेबल्स ख़रीदनी होती है तो हम ग्रीन ग्रोसर की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल सेल करता है. देन हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. whom डू वी कॉल इफ देयर इज़ अ फायर? अगर आग लगती है तो आप कहाँ फ़ोन करते हो, किसको बुलाते हो? सो वी कॉल अ फायर स्टेशन इफ़ देयर इज़ अ फायर. अगर कहीं आग लगती है तो हम फायर स्टेशन में फ़ोन करते हैं. देन दे सेंड द फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड इज़ अ स्पेशलाइज्ड vehicle. They have all the necessary equipment which is required to put off the fire. उनके पास आग बुझाने के सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं. पहले when fire brigade used to go, वो एक उस पर बड़ी सी एक बेल लटकी रहती थी, वो बेल रिंग करते हुए जाते थे, so that everyone knows that there is a fire somewhere. कहीं आग लगी है, फायर ब्रिगेड जा रही है. तो आप जो भी व्हीकल रास्ते में चल रहे हैं आप थोड़ा साइड हो जाओ. गिव वे टू द फायर ब्रिगेड सो दैट इट कैन मूव क्विकली. वो बेल बजाने का मतलब ये होता था कि फायर ब्रिगेड जा रही है, कहीं आग लगी हुई है तो आप उसको जल्दी से रास्ता दो, ठीक है. नाउ डेज हुटर इज़ देयर. जैसे एम्बुलेंस पे होता है, पुलिस की गाड़ी पे होता है, तो हुटर इज़ देयर. हुटर बजाते हैं मतलब सम इमरजेंसी इज़ देयर. जैसे एम्बुलेंस जाती है, अगर एम्बुलेंस जा रही होती है तो हम नॉर्मली हम रास्ते से हट जाते हैं, रास्ता दे देते हैं सो दैट इट कैन गो क्विकली. सो वी कॉल अ फायर स्टेशन इफ़ देयर इज़ अ फायर. फायर ब्रिगेड में दे हैव थिक, वेरी थिक पाइप्स. बहुत थिक पाइप्स होते हैं. इट्स अ स्पेशलाइज्ड व्हीकल. बहुत थिक पाइप्स होते हैं एंड दे हैव अ ह्यूज टैंक ऑल्सो. पानी का बहुत बड़ा टैंक भी होता है एंड थिक पाइप होता है जिससे बहुत फोर्स से, बहुत स्पीड से पानी स्प्रे होता है. देन दे हैव लॉन्ग लैडर ऑल्सो. जिससे कहीं हाइट पे जाना है, किसी 6th फ्लोर 7th फ्लोर पे, कहीं पे किसी बिल्डिंग की हाइट पे ज़्यादा ऊपर के फ्लोर्स पे जाना है तो दे हैव लैडर ऑल्सो. उस लैडर के थ्रू वो ऊपर चले जाते हैं. दे हैव ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू पुट आउट द फायर. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पीड पोस्ट. स्पीड पोस्ट is a specialized service of the government through which letters reach very fast. स्पीड पोस्ट जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट ऑफिस की स्पेशलाइज्ड एक स्पेशल सर्विस होती है जिससे लेटर्स जल्दी पहुंचते हैं. इफ़ देयर इज़ एनी अर्जेंट लेटर विच वी वांट टू रीच क्विकली, वी नॉर्मली सेंड बाय स्पीड पोस्ट. अगर कोई हमारा लेटर है जो कि हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी पहुंचना चाहिए, तो हम उसको स्पीड पोस्ट से भेजते हैं. एंड सेकेंडली, इफ़ वी सेंड अ लेटर थ्रू स्पीड पोस्ट वी आर अश्योर्ड कि वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा. नॉर्मल लेटर कभी कभी ऐसा होता है कि वो रास्ते में कई बार मिसप्लेस हो गए या कुछ हो गए. स्पीड पोस्ट में ऐसा रिस्क नहीं होता है. वी आर श्योर दैट द लेटर विल रीच इट्स प्रॉपर प्लेस. जहाँ भी जाना है लेटर को वहाँ वो पहुँचेगा.
What do we buy from a chemist shop? Chemist shop से हम क्या खरीदते हैं? As I have told you, we buy medicines from a chemist shop. हम chemist shop से medicine खरीदते हैं. Then life skills. Do you keep phone numbers of important neighborhood services such as police station, fire station and hospital? क्या आप अपने जो घर के पास की जो हमारी जो इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज हैं, नेबरहुड सर्विसेज का मतलब ये नहीं है दैट इट डज़ नॉट मीन दैट दे आर राइट नेक्स्ट टू योर हाउस. If the hospital is right next to your house, then only it will be known as neighborhood service. No, ऐसा नहीं है कि एकदम आपके घर के पास में हो, थोड़े दूर भी हो सकता है. नॉर्मली पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, वो हर जगह तो आपको मिलेगा नहीं. पूरी सिटी में फायर स्टेशन एक ही मिलेगा. पुलिस स्टेशन तो फिर भी अलग अलग थाना होता है, तो पुलिस स्टेशन अलग अलग पुलिस बूथ्स हैं. सो नेबरहुड सर्विसेज का मतलब है कि 10 places which provide us different services विच मेक अस लिव इन कम्फर्ट. जैसे पुलिस स्टेशन तो है, हर एक एरिया का अपना अपना थाना होता है, बट फायर स्टेशन तो एक ही होगा. सो नेबरहुड सर्विसेज का मतलब है कि जो प्लेसेस जो हमें कंफर्टेबली रह सके, ऐसी सर्विसेज देती हैं. सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट जो नेबरहुड सर्विसेज हैं जैसे पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, इन सब का नंबर रखते हो? येस, वी डेफिनेटली कीप द नंबर ऑफ दीज प्लेसेस बिकॉज वी नेवर नो कब हमको इनकी ज़रूरत पड़ जाए. इजंट इट? कोई भी तबीयत ख़राब होती है, कोई बीमार पड़ता है, तो बीमारी तो नॉक नॉक करके नहीं आती है कि नॉक नॉक आई एम कमिंग बता के नहीं आती है. तो सो मेनी टाइम्स इट सो हैपन्स दैट इफ़ वी डू नॉट हैव द नंबर, फिर हम फ्रांटिकली इधर उधर भागना शुरू करते हैं. हमें नंबर नहीं मिल रहा है, हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं. इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फिर हमको भाग भाग के नंबर लेना पड़ता है. सो इट इज़ बेटर दैट वी ऑलवेज कीप द नंबर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज. हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे हैं. जो जिस भी हॉस्पिटल में जाता है, जिस भी डॉक्टर के पास जाता है, लोग सबका नंबर रखते हैं. सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द फ़ोन नंबर्स ऑफ important neighborhood services so that we don't have to run around in case of any emergency. कोई emergency होती है तो हमको फिर इधर उधर भागना ना पड़े. तो डेफिनेटली हमें important neighborhood services के नंबर रखना चाहिए. Okay children? So this lesson is over. We have completed the lesson. Then tomorrow I'll start the new lesson. Thank you children.